Okay, the last part of the chapter is the working of banking companies. Now, see, mm, again, many things are repeating because it is the point of working of banking companies. That means how banking companies work. Working of banking companies is given according to its regulatory framework. Okay, mute everybody, please. According to the regulatory framework, that means how they operate, how banking companies operate, and this is how they are explaining as to the working of the as to how the banking companies work. Okay, so it is regulatory framework that is given, and through that we will understand how the banking companies operate. Okay, I mean, who is there to look after banking companies? What act is made to look after to the rules and regulations that are made for the banking company? Okay, so first is on the PEX position, again RBI. We have done many things about RBI. In first chapter also, we have done in detail about RBI. But let me tell you once again, see, RBI was originally constituted as shareholders bank. It was first constituted as shareholder bank in 1935, but in under RBI under RBI Act 1934, to regulate the issue of bank notes, keep reserves with you to secure monetary stability in India, but it was with name shareholder bank. ओके, ये सारे काम उसके तब भी थे, बैंक के नोट्स इशू करना, रिजर्व्स मेंटेन करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना इंडिया में, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 1949 नीड अराइज हुई कि कोई एक नेशनलाइज्ड बैंक होनी चाहिए, ठीक है, जो सारी बैंक्स के, कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो सारी बैंक के फंक्शंस को रेगुलेट करे. So, it has been performing a number of functions as a central banking authority since 1949. ठीक है, अब 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आया. 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया जिसने आरबीआई को पावर्स दिए सुपरविजन के, कंट्रोल के, डायरेक्शन के, है ना, कि आप सारी बैंक को डायरेक्ट करेंगे, आप सारी बैंक्स अदर बैंक्स को कंट्रोल करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे, उनके ऊपर इंस्पेक्ट मतलब उनके ऊपर नजर रखेंगे कि उनका जो काम चल रहा है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं. कितनी सारी बैंक्स को, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. अब इसके बाद है ना, आप सीधा लिख सकते हैं क्या बोलते हैं इसे, व्हाट टू से, फंक्शंस ऑफ आरबीआई. ये हमने ना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ आरबीआई. मतलब आपको इतना सही लिखकर ये फर्स्ट पैरा लिखकर आप सीधा 2-4 फंक्शंस बता देंगे ना, तो आपका फर्स्ट पॉइंट इज डन. द फर्स्ट पॉइंट इज आरबीआई. नेक्स्ट, अभी अभी हमने पढ़ा शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड. तो शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? सी, शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंड शेड्यूल्ड बैंक. जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में नहीं आती है बैंक्स की लिस्ट, दैट इज नोन एज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. Section 2E of Reserve Bank of India Act 1934 defines scheduled bank as whose name is included in the scheduled bank in second schedule. Scheduled bank ये वो बैंक होती हैं जिनका नाम, whose name is included in second schedule. That means RBI has so many number of schedules. Now in second schedule, if your bank is included in the second schedule of RBI Act 1934, then it is scheduled bank. Otherwise, it is non-scheduled. समझ आ रहा है? Clear है? Yes, ma'am. Yes. The bank which satisfies the condition let down in section 42 subsection 6, which is included in second schedule, उसे कहते हैं scheduled bank. ठीक है, जो सारे ही condition satisfy करते हैं. ठीक है. The bank whose paid up capital and reserves capital of not less than 5 lakhs. Not less than 5 lakh means it should be minimum 5 lakhs.
It can be more than 5 lakhs, but it cannot be less than 5 lakhs. Okay, that bank can be called as scheduled bank. Okay, commercial banks and rural banks are also classified as scheduled banks. See here, look at my cursor. Commercial banks and rural banks, regional rural banks, I already told you. Those banks are also classified in the scheduled bank. So, scheduled bank, we have commercial banks, cooperative banks, that way. Next, we have any bank that is not included in the second schedule of RBI is called non-scheduled bank. I already told you. So once again they are giving you the same point. कोई भी बैंक जो सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होती है आरबीआई की, उसे कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक. ठीक है. Every scheduled bank is required to hold in India by way of credit balance in account with RBI or its State Bank of India, the required percentage of cash reserve ratio of its liabilities. याद रखो, जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, मतलब सारी की सारी, every scheduled bank is compulsorily to hold with RBI क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट, यानी कि कुछ तो आप समझो आपकी जो नेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का बैलेंस है ना, ठीक है, आपकी जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जितनी भी आपने डिपॉजिट्स लिए हैं लोगों से, उसका उसका नेट लाइबिलिटीज का सर्टन परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करती है. समझो अभी चल रहा है 4%, तो 4% आप अपनी लाइबिलिटीज का निकाल कर वो कैश को आरबीआई के पास रख के आते हैं, एंड दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, और हर शेड्यूल्ड बैंक को ये कंपल्सरी करना पड़ता है, कंपल्सरी. RBI of India, by notification in Gadget of India, increases the percentage which shall not exceed 20% in the case of demand liabilities and 8% in the case of time liabilities. देखो क्या लिखा हुआ है, I'll explain you. जब देखो अब हर शेड्यूल्ड बैंक को कुछ कुछ परसेंटेज अपनी लाइबिलिटीज का निकालकर, समझो 4%, तो 4% निकालकर आपको आरबीआई के पास रख के आना है कैश के फॉर्म में. ठीक है, ये कैश के फॉर्म में आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है. ये इससे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर. अब ये जो सीआरआर का जो जो परसेंटेज है ना, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम तो उसके अंडर में होगा ना, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है. तो वो बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको आरबीआई टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करती है बैंक्स को कि अब ये परसेंटेज इतना हो गया, इतना हो गया, लेकिन वो डिमांड लाइबिलिटीज जो है ना उसका 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, और जो टाइम लाइबिलिटीज है उसका 8% से ज्यादा नहीं हो सकता. And I hope you understand the difference between demand and time liabilities. Time means जैसे fixed deposit और demand liability means जैसे saving deposit. तो saving deposit जैसे liabilities का, liability क्यों बोल रही हूँ मैं ये? सेविंग डिपॉजिट बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल लाइबिलिटी होती है. जब लोग मांगने आएंगे उनका पैसा, तब बैंक को देना पड़ेगा. बैंक ये नहीं बोल सकती कि आज मेरे पास कैश नहीं, कल लेने आना, कभी नहीं बोल सकती बैंक. आपका पैसा है ना, ये पब्लिक का फंड है, तो पब्लिक जब भी विड्रॉ करने आती है तो बैंक कभी मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका खुद का पैसा है, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. डिमांड लाइबिलिटी, सेविंग डिपॉजिट, तो बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है ना, ये मेरी एसेट है, ये मेरा पैसा बैंक में पड़ा है सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, तो ये मेरा एसेट है, लेकिन बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है. इसीलिए इसे डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटीज बोला जाता है. टाइम लाइबिलिटीज का एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट. ठीक है, जो 1 ईयर की मैच्योरिटी के बाद तो बैंक को देना पड़ेगा ना, तो इट इज लाइबिलिटी ऑन द बैंक. Okay, so which shall not exceed 20% on demand liability and which shall not exceed 8% on time liabilities. Okay, ये clear हुआ इतना? Yes, ma'am.
अभी आ जाओ नेक्स्ट, ये था हमारा किसके बारे में, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड के बारे में इतना कुछ वो नहीं बता रहे, क्योंकि आपको शेड्यूल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कमर्शियल बैंक्स भी सारे शेड्यूल्ड बैंक्स के अंडर में आते हैं ना, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, अभी ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। ये आपका हो गया आरबीआई। आरबीआई के अंडर में शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में आप बता दो, ठीक है, बता दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्किंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। जब शॉर्ट नोट आएगा वर्किंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, तो आपने ये पॉइंट्स में लिखना है ऐसा। पहले बैंकिंग कंपनीज का डेफिनेशन दे दो कि बैंक्स होती क्या है, उसके बाद आप ये पॉइंट नंबर 1 आरबीआई, ठीक है, वो अपेक्स पोजीशन है, ये सारे फंक्शनिंग देखती है सारे बैंक्स की, ठीक है। इट हैज अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी, डायरेक्शन अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इंस्पेक्शन अथॉरिटी, ये आरबीआई के पावर्स हैं। अब ये पावर्स इसको दिए किसने, तो सेकंड पॉइंट है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। बिफोर 1949 ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जो जो सब्सिक्वेंटली एडिक्वेटली प्रॉपर लेजिस्लेशन निकालकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए बैंकिंग को कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। बिफोर 1949 ऐसा कुछ नहीं था, बट आफ्टर इन 1949 एक बैंकिंग एक्ट पास किया गया बैंकिंग कंपनीज का, was passed in 1949 and it has changed to जो जो नाम दिया गया उसको ये दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कब दिया गया ये, 1949 में। and it was banking regulation, how should bank regulate, how should bank operate, what are the rules and regulations that bank needs to follow, ओके। और इसे टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, टाइम सिचुएशंस के हिसाब से, टाइम्स के हिसाब से इसे चेंज किया जाता है। अमेंडेड, अमेंडेड मतलब चेंज। इट वाज सूटेबली अमेंडेड अ नंबर ऑफ टाइम्स टू इंसर्ट न्यू प्रोविजंस एंड टू अमेंड एक्जिस्टिंग वंस टू सूट द नीड्स ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे तो इनके जो लॉज है ना, रूल्स है ना, उन्हें धीरे धीरे चेंज किया जाएगा टू सूट द नीड्स ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट, ओके। और जो लूप होल्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए, ठीक है, उन्हें हटाने के लिए, जो मिस्टेक्स हो रही हैं बैंकिंग सेक्टर में जो नहीं होनी चाहिए, वो वो लूप होल्स जो प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स मतलब प्रॉब्लम्स, वो उन्हें प्लग आउट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं तो उसे डिफाइन कैसे किया जाता है, द बिजनेस ऑफ द बैंक बाय स्टेटिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बैंकर। ये बताते हैं आपको कि आप किसी भी बैंक के लिए एक इसेंशियल फंक्शन क्या है। इसेंशियल फंक्शन बैंक का क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पब्लिक पैसा मांगने आ रही है तो आप उनको रीपे करो, उनका पैसा रीपेबल ऑन द डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉवेबल, उनको विड्रॉ करने दीजिए बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो ये सारी फैसिलिटीज बैंक को प्राइमरीली देनी पड़ती है, कंपल्सरी, ठीक है। सेक्शन 8 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो सेक्शन 8 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो बैंकिंग कंपनीज को प्रोहिबिट करता है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग नहीं कर सकते का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग नहीं कर सकते का मतलब ये होता है आप गुड्स को खरीद कर बेचने का काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बाय गुड्स एंड सेल इट टू द कस्टमर्स। yes, you can sell policies, you can sell schemes related to your deposits, loans। आप लोन की कोई स्कीम निकालते हो वो बेच सकते हो, लोन, अगर लोन को बेचना है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। किसी प्रोडक्ट को खरीद कर, मोबाइल खरीद कर बेचना आप नहीं कर सकते। तो सेक्शन 8 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का बताता है कि आपको प्रोहिबिट है, आप नहीं कर सकते एज अ बैंक, आप गुड्स में डीलिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सेक्शन 8 ऐसा बताता है। सेक्शन 11 क्या बताता है, सेक्शन 11 ये बताता है कि अगर आपको बैंकिंग कंपनी ओपन करनी है तो इतना मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल आपके पास होना चाहिए, इतना मिनिमम पेड अप कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ये सेक्शन 11 बताते हैं, ठीक है। सेक्शन 22 क्या बताते हैं, लाइसेंसिंग।
सेक्शन 22 बताता है लाइसेंसिंग मींस अगर किसी भी बैंक को ओपन करना है तो लाइसेंस लगता है ना, इशू तो आरबीआई करेगा, लाइसेंस इशू कौन करेगा, आरबीआई, लेकिन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके फॉलो करने होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, एक बैंक को क्यों कब लाइसेंस इशू कर सकते हैं, कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जो अगर वो फुलफिल करते हैं तो ही लाइसेंस इशू करना है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से फॉलो करते हुए लाइसेंस इशू करना। किसी ब्रांच को भी ओपन होना होता है ना तो भी लाइसेंस लगते हैं, ठीक है, इशूड बाय आरबीआई, देखो लिखा हुआ है। सेक्शन 23 क्या बोलते हैं, सेक्शन 23 कहता है, ये देखो सेक्शन 23 requires every banking business to take RBI's permission for opening a new place of business in India or to change the location of existing business in India, place of business। अब आपको ना प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, मुंबई से मुंबई की ब्रांच क्लोज करके दिल्ली में ओपन करना है आपको अपना बिजनेस, तो उसके लिए परमिशन लगेगी आरबीआई के लिए। तो जितनी भी जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, परमिशन कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर सकते हैं, लोकेशन चेंज करना है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सेक्शन 23 में लिखा हुआ है। किसके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अच्छा, सेक्शन 24 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो सेक्शन 24 में बताया है, ठीक है, कि एवरी मंथ आपको स्टेटमेंट सबमिट करना है आरबीआई को, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इतना इतना मेंटेन करना है, ठीक है, ऑल्टरनेट फ्राइडे को आपका बिजनेस क्लोज करके जितना भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होना चाहिए परसेंटेज, ठीक है, वो आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है। सेक्शन 35 क्या बताता, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब, इंस्पेक्शन वर्ड दिया हुआ देखो, इंस्पेक्शन मतलब आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं अलग अलग बैंक्स की, मतलब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, उनकी वर्किंग्स को चेक करना, वेदर दे आर इन्वॉल्व इन लीगल बिजनेस, ठीक है, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इंस्पेक्शन करना क्या वो जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो फेयर एंड ट्रू है कि नहीं है, सच्चा प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज नोन एज इंस्पेक्शन, उनके ऊपर नजर रखना, ठीक है, वो सेक्शन 35 के बारे में, सेक्शन 35 में लिखा हुआ है। सेक्शन 21 पावर्स देता है आरबीआई को कि आप सारी कंपनी के पॉलिसीज, उनके एडवांसेस, उनके उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे नजर रखेंगे, ठीक है, डायरेक्शन देंगे। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेक्शंस, जो कि क्या काम करता है, उनका एम क्या है, क्या ये सेक्शंस क्यों निकाले गए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, सो दैट it ensures, क्यों क्यों ये निकाले गए, because it ensures better management of banking companies so that banking companies can be managed better way and which confirms powers to the RBI to this regard, मतलब ये मैनेजमेंट प्रॉपर कैसे होगी, जैसे क्योंकि आरबीआई को पावर्स दिए गए कि आप इनकी वर्किंग्स पर नजर रखेंगे। आया समझ में, इतना सबको क्लियर है? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. अभी अभी हमने Yes, पढ़ा था, ma'am. यस, अभी अभी हमने ना कुछ कौन हो गया, वर्किंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज हो गया, डन। वर्किंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज में हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक सबसे अपेक्स पे होता है आरबीआई, ठीक है, वो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप आरबीआई के बारे में, उसके कुछ फंक्शंस भी लिख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़े थे। अब आरबीआई के अंडर में हमने पढ़ा शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, तो थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बता देना। अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो आरबीआई को पावर्स कन्फर करती है, ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में आप अभी देखो, सेक्शंस याद नहीं भी पढ़ते तो ठीक है, लेकिन लेकिन जो पॉइंट्स हमने पढ़ी वो तो आप पॉइंट्स बनाकर लिख ही सकते हैं, सेक्शंस नहीं भी याद पढ़ते तो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अभी देखो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हो गया वर्किंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज डन।
लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, बताया ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या होता है ये डिटेल में। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, देखो सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में लिखा हुआ है, ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड मींस कंपल्सरी, रिक्वायर्ड मींस कंपल्सरी उनको है क्या, टू कीप अ मिनिमम कैश रिजर्व विथ आरबीआई। आपको ना एक एक मिनिमम परसेंटेज जो बताई जाएगी ना, उतना तो आपको आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको, मतलब बैंक्स को। कौन सी बैंक्स को, शेड्यूल्ड बैंक्स को। आरबीआई ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू वेरी सीआरआर। अब ये आरबीआई के हाथ में है कि सीआरआर कितना रखना चाहिए। तो ये जो सीआरआर है ना, उसका परसेंटेज चेंज होता है, चेंज, एंड इट वेरीज फ्रॉम 33 to 15%. It varies between 3 and 15% of total demand and time liabilities. मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो CRR होता है ना, किसका परसेंटेज होता है, डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब जो ये 1991 में ना कुछ चेंजेस की गई, आरबीआई ने बोला ये जो 15% मैं बोल रही हूँ ना, ये जो 15% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आरबीआई ने कहा ये 15% को अब 20% माना जाएगा। मतलब हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 20% बाय नोटिफिकेशन, कि आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये परसेंटेज यहाँ तक इंक्रीज हुई है। 20% से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकती है आरबीआई। अब ये परसेंटेज 3 to 20% हो गई, मतलब 3 से 20% तक आरबीआई कभी भी चेंज कर सकती है। कभी 3, कभी 4, कभी 19, कभी 18, कभी 15 हो सकता है। इट टाइम टू टाइम ये आरबीआई का परसेंटेज चेंज होता है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब ये जो क्या कहते हैं इसे, ये जो सीआरआर है ना, कैश रिजर्व रेशियो, ये एवरी रिपोर्टिंग फ्राइडे, फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली का मतलब क्या होता है, देखो, इट इज टू बी मेंटेन्ड एट फोर्टनाइटली एवरेज बेसिस ऑन रिपोर्टिंग फ्राइडे मींस, फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 डेज, याद रखो। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 डेज, फोर्टनाइटली, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज। तो 15 डेज में आपको ये मेंटेन करना पड़ता है। सपोज इस बार आरबीआई ने बोल दिया 4% मेंटेन करना है, तो आपकी जितनी भी डिमांड लाइबिलिटीज है, टाइम लाइबिलिटीज है ना, उसका 4% निकालेंगे आप, उसमें से कैश निकालेंगे 4% के इक्विवेलेंट, और वो 4% जाकर आरबीआई को देकर आएंगे। उनके पास मेंटेन करना पड़ता है ये कैश। अच्छा, कब कब मेंटेन करना पड़ता है, 15 डेज में, 15 डेज में आपको ये मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। और रिपोर्टिंग फ्राइडे, रिपोर्टिंग फ्राइडे मतलब जो 15 डेज में जो जो पहला फ्राइडे आएगा ना 15 डेज में, 15 डेज हो गए जो फ्राइडे आया, तब फ्राइडे को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको आरबीआई के पास। ये तो हो गई शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में बात। तो क्या नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को नहीं रखना पड़ता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए कंपलसरी नहीं है? है, उनके लिए भी कंपलसरी है, लेकिन वो आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं करते हैं, अपने पास रखते हैं। आरबीआई आकर चेक कर सकती कि उन्होंने अपने पास कितना मेंटेन रखा है। समझ आया मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. म्यूट, बेटा सोनम म्यूट कर दो आप, सोनम आपका अनम्यूट हो गया। चलो आगे देखो, ये तो हो गया शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में देखो। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स मेंटेन सीआरआर as per section 18 of banking regulation act by maintaining 3% of, अब ये तो 3 नहीं है, तो ये 4 हो गया, of net demand and time liabilities as the cash balance with themselves। देखो कितना वर्ड इंपॉर्टेंट है ये, with themselves, मतलब इनको आरबीआई के पास जाकर डिपॉजिट करके आने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करते हैं,
अपने पास मेंटेन रखते हैं, अपने पास एक अलग से कैश बैलेंस का अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम ही होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और ये आरबीआई के पास पावर्स हैं कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक के पास भी जाकर चेक करके आने का कि उन्होंने अपने पास मेंटेन रखा है कि नहीं रखा। ठीक है, समझ में आया ये नॉन शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड बैंक का? Yes, ma'am. ये देखो, ये कुछ रेट्स दिए हो। एसएलआर रेट मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये तो पुराने हो गए हैं, अभी ये 2016 के 2019-20 के न्यू रेट्स हैं। ठीक है, मैं आपको देती हूँ व्हाट्सएप पे ना, आपको मैं सारे न्यू रेट्स भेजती हूँ। एक यूट्यूब का वीडियो भी भेजूंगी, वो आप जरूर देखना, सीआरआर और एसएलआर का। वो बहुत अच्छा वीडियो मैम है और सीआरआर आपको। अभी भी 4 ही है। हाँ वो पता है ना मुझे, 4 ही है। मैं एसएलआर की बात कर रही बेटा। सीआरआर तो अभी मैंने ऊपर भी तो बताया, ये 4% हो गए। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 3 का 4 हो गया। एसएलआर की बात कर रही हूँ, वो चेंज हुआ है। एमएसएफ रेट, ओके, रेशियो रेट, रिजर्व रेशियो रेट, बेस रेट, ये सारे रेट्स हैं जो ना बैंक को मेंटेन करने होते हैं। अब देखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेट क्या होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 सेक्शन 2A, every bank requires to maintain in India equivalent to an amount which is not closed at the beginning, uh, which shall not at the close of the business or any day which should be less than 25% of the total of its demand and time liabilities in India, which is known as statutory liquidity ratio। मतलब अभी तो 25, अभी हम देखेंगे नॉट लेस देन 25% ही उन्होंने मिनिमम बता दिया। मिनिमम which should not be less than 25%, आपको ये मेंटेन करना पड़ता है at the close of the business, at the close of the business day और any day। कोई भी एक दिन जो आरबीआई आपको डिसाइड करके बताती है, उसमें 25% से कम नहीं होना चाहिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का बैलेंस। अच्छा, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसके ऊपर निकाला जाता है? टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, सेम जैसे सीआरआर है ना, वैसे एसएलआर होता है। SLR is calculated as in the case of CRR, okay? CRR के जैसे कैलकुलेट किया जाता है। RBI can increase SLR up to 40%। मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक हो सकती है SLR की, जो RBI इंक्रीज कर सकती है? 40। और CRR की कितनी थी? 20। याद है ना? याद है सबको? ओके, अभी आगे देखो, द एसेट्स फॉर विच एसएलआर इंक्लूड्स। अभी कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिनके ऊपर हम एसएलआर कैलकुलेट करते हैं? देखो, आपके पास कितना कैश इन हैंड है, कितना आपके पास गोल्ड है विच इज ओन्ड बाय बैंक, गोल्ड ओन्ड बाय बैंक, ठीक है। बैलेंस विथ आरबीआई, आपके पास आपका कुछ ऐसा डिपॉजिट है जो आपने आरबीआई को दिया हुआ है in excess of ones under section 42। मतलब जितना होना चाहिए मिनिमम वो नहीं, मिनिमम से थोड़ा जितना ज्यादा है ना, वो बैलेंस की बात चल रही है। सपोज आरबीआई ने बोला मिनिमम बैलेंस है ना 5% होना चाहिए आपका डिपॉजिट्स का, तो अगर आपने 7% रखा हुआ है तो 2% एक्सेस में है ना, तो वो 2% काउंट किया जाएगा एसएलआर के लिए। अच्छा, और क्या काउंट किया जाएगा? नेट बैलेंस इन करंट अकाउंट विथ एसबीआई। आपका एसबीआई के पास करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपने कितना डिपॉजिट किया हुआ है। एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स, मतलब आपने कोई और भी नेशनलाइज्ड बैंक्स में आपकी बैंक ने कुछ डिपॉजिट रखा हुआ है, करंट अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है, वो भी काउंट किया जाएगा। या फिर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपकी बैंक ने कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ क्या इन्वेस्ट करना ही पड़ते, कंपलसरी बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है कंपलसरी। तो जो आपकी गवर्नमेंट बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है ना अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ये सब प्लस करके, ये जो मैं बता रही हूँ ना कैश इन हैंड, गोल्ड, ये सारी एसेट्स को प्लस करके इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एसबीआई के पास बैलेंस, आरबीआई के पास जो एक्सेस बैलेंस है, ठीक है, और अदर नेशनलाइज के पास जो बैंक में आपने बैलेंस रखा हुआ है करंट अकाउंट के फॉर्म में,
ये सारी एसेट्स को प्लस करके आप SLR का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। 4%, 5%, 19.5%, वॉट एवर द परसेंटेज इज। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी सीधा नीचे आ जाओ, ये देखो ये वाली पॉइंट, सीधा नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, ये वाला जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही। द SLR इज टू बी मेंटेन्ड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन एवरी डे। हर दिन आपका बिजनेस 6 बजे बंद होता है, बैंक अगर 5 बजे 6 बजे बंद हो रहा है तो जो भी आपका बिजनेस का क्लोजिंग टाइम है, ठीक है, ऑन एवरी डे, ये डेली बेसिस पे। देखो CRR डेली बेसिस पे नहीं होते, फोर्टनाइटली होते हैं, 15-15 डेज। लेकिन SLR क्या होता है? एवरी डे, डेली बेसिस। किस पे कैलकुलेट, किस डेली बेसिस किसका? ऑन नेट एंड डिमांड टाइम लाइबिलिटीज एज ऑब्टेनिंग ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइटली। होता होता डेली है, ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है। लेकिन इसको मेंटेन कैसे करना है? आपको हर फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे चेक करना है 15-15 डेज का। जो 15 डेज के पहले फ्राइडे आएगा ना, 15 डेज के पहले जो फ्राइडे, फोर्टनाइटली मतलब 15 डेज, सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइटली मतलब जो अभी आके आगे आने वाले 15 डेज होंगे ना, उसका लास्ट फ्राइडे जो होगा, वो दिन पे आपको चेक करना है कि आपका प्रॉपर बैलेंस मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका CRR और SLR। इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश दिया हुआ है। देखो, CRR जो परसेंटेज होती है वो मेंटेन कैसे होती है? आपके डिपॉजिट्स पे। ठीक है, देखो परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट पे मेंटेन होता है, विच अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। RBI के पास मेंटेन करना जरूरी है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, लेकिन वो अपने पास ही रखते हैं, केप्ट विद द बैंक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना होता है, जिनको बेचकर हम इजीली रिकवर कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, अभी अभी तो मैंने बताया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये वही लिक्विड एसेट्स बताई, उनके फॉर्म में मेंटेन करना है, कैश नहीं रखनी है। यहाँ पे CRR कैश के फॉर्म में रखना होता है RBI के पास, लेकिन SLR आपको कैश के फॉर्म में नहीं रखना है, गोल्ड के फॉर्म में, अभी अभी मैंने बताया, सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, उसके फॉर्म में रखना है, उसके काइंड में। अच्छा, CRR क्या होता है? इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए, मनी का फ्लो लाने के लिए CRR मेंटेन होता है। और ये किस लिए होता है? बैंक की एबिलिटीज लिमिट, क्रेडिट लिमिट्स को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब लोन्स जो आप ऑफर करते हो ना कस्टमर्स को, वो कम ज्यादा करने के लिए, लिमिटिंग करने के लिए SLR के लिए SLR मेंटेन किया जाता है। अच्छा, CRR कैश के फॉर्म में डिपॉजिट होता है RBI के पास, SLR एसेट्स के फॉर्म में डिपॉजिट होता है अपने पास, RBI के पास नहीं, अपने पास, गोल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, इट कंट्रोल्स मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। CRR की बात चल रही है, वो क्या करता है? मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है। और SLR क्या करता है? जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड है उसको कम करता है मनी की, मतलब लोन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाता है SLR। ठीक है, नेक्स्ट, CRR क्या मेंटेन करता है? कहाँ पे मेंटेन करता है बैलेंस? RBI के पास। लेकिन SLR अपने पास, ये देखो, SLR इज मेंटेन्ड विथ बैंक इटसेल्फ, अपनी बैंक के पास मेंटेन करना होता है कंपलसरी। लेकिन SLR कंपलसरी, स्टैट्यूटरी लिक्विड, स्टैट्यूटरी का मतलब ही होता है कंपलसरी, लिक्विडिटी मतलब एसिड्स के फॉर्म में, जो लिक्विड एसिड्स होती हैं, लिक्विड मतलब जिनको फटाफट बेचकर फटाफट कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं लिक्विड एसिड्स। ठीक है, अच्छा, और इसका नाम ही देखो कैश है, कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश के फॉर्म में मेंटेन करना होता है। अच्छा, ये क्या लाता है? रेगुलेट क्यों किया जाता है? इसे लिक्विडिटी लाने के लिए इकोनॉमी में। और ये आपको लोन के फॉर्म, इस लोन को कंट्रोल करना, ग्रोथ लाना इकोनॉमी में, क्रेडिट के फॉर्म में ग्रोथ लाना, मतलब लोन्स, यहाँ पे लोन्स को फोकस किया, यहाँ पे कैश को फोकस किया है। ठीक है, लिक्विडिटी को फोकस किया। ओके, अब ये सारा कुछ हम लोग, अब ना मैं आपको वीडियो भेजूंगी, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे, तो वो ज़रूर देखना, CRR और SLR का वीडियो होगा। आपको चाहिए तो मैं गूगल फॉर्म में भी अटैच कर लेती हूँ, ठीक है, वो आप ज़रूर देखना वो वीडियो।
it would be related to CRR and SLR. रेट्स मैं आपको भेज दूंगी, और ये हम ये रेट्स करने वाले ना, ये अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिए हुए ये वाले रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, उससे ही रिलेटेड कुछ रेट्स हैं, ये मैं आपको अब जो हमारा बैंकिंग का नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, अभी तो खैर इंश्योरेंस का चैप्टर आएगा नेक्स्ट, जो बैंकिंग का चैप्टर आएगा वो हम उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, सो फाइनली हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। चैप्टर वाज फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। ओके, Okay, ma'am. कुछ डाउट है यहाँ Okay, तक तो आप पूछिए। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? yes, ma'am. ओके ओके, वेट, हाँ, आप रिवाइज कीजिए, फिर भी आपको अगर नेक्स्ट लेक्चर तक कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।